Very good morning to all students. So dear students, after the vapor pressure, the next topic is about the ideal and non-ideal solutions. So firstly, we have to clear one thing, that is what are the ideal solutions. So the binary liquid-liquid solutions is classified into two types. Number one is ideal solution and the number two is non-ideal solutions. So firstly, we have to clear what is ideal solutions. Ideal solution is defined as a solution which obeys the Raoult's law over the entire range of concentration. That means ideal solution is that which obeys the Raoult's law. So what is the Raoult's law now? That is PA is equal to P naught AXA. This is the Raoult's law. So we can say that हमारे पास यहाँ पे बेटे क्या होगा, दो कंपोनेंट्स कोई भी A और B, क्लियर, उन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास कंपोनेंट बन जाएगा AB जो कि वो सोल्यूशन होगा. सो द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स AB are of same magnitude as then AA and BB. That means we having A component, we having B component. After mixing, we obtained AB component, and if they have same forces of interactions, then we can say that they are the ideal solutions. Clear? Or according to the Raoult's law, we know that this is PA is equal to P naught AXA. Clear? So जो भी आइडियल सोल्यूशन होएगा वो इस लॉ को अवे करेगा. दैट मीन्स वहाँ पे जो होएगा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के बराबर होएगा. क्लियर? ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस दे ओबेइंग दिस लॉ. क्लियर? सो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज द heat change on mixing is zero. What is the meaning of this line? Second one is volume change on mixing is zero. So we having two components, और जब इन दो components को बेटे हम आपस में mix करेंगे, so then there is no change in the volume. For example, we having 100 ml of benzene and 100 ml of toluene. So जो हमारे पास, that means benzene को आप मान लो A component, टॉलिन को आप मान लो B component. तो जब इनको हमने मिक्स किया, सो इट इज़ बेंजीन टॉलिन कम्बिनेशन, तो उसका जो अमाउंट है इट बिकम्स 200. क्लियर? सो देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम. सो वी कैन से दैट आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम्स व्हेन मिक्सिंग इज टेक्स प्लेस. व्हाट इज द मिक्सिंग? किसकी मिक्सिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे? आइडियल सोल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम कोई भी एक एग्जांपल डिस्कस कर ले, जैसे बेंजीन और टॉलिन. तो दोनों को बेटे जब मिक्स किया, देन वी ऑब्टेन्ड अ सोल्यूशन एंड अमाउंट उसका कैसे होएगा? जैसे कि कंपोनेंट्स का है. सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. सिमिलरली नो चेंज इन हीट. दैट मीन्स जब उन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी हीट एब्सोल्यूट नहीं होएगी. ठीक है? कोई भी हीट यहाँ से रिलीज नहीं होएगी. देयर इज नो चेंज इन हीट. सो वी कैन से दैट डेल एच मिक्सिंग इज जीरो एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स डेल बी मिक्सिंग इज जीरो. क्लियर? नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होंगे? फर्स्ट वन, इट मस्ट ओबे रॉल्ट्स लॉ. सेकेंड वन इज द डेल एच मिक्सिंग इज जीरो. थर्ड वन इज द डेल बी मिक्सिंग इज जीरो. दीज आर द मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल solutions. So here are some examples. For example, benzene and toluene, hexane and heptane, bromoethane and iodoethane. In first case, we discussed the force of interactions. So dear students, see this bromoethane, iodoethane. Only the electronegative element is different, but they having the same forces of interaction. So जब इन दोनों को हम combine करेंगे, जो composition हमारे पास बनेगी, also they have the same forces of interaction. So in this case, AA interactions and BB interactions similar to that of AB interactions. So this is the ideal solution. Now the next one is the non-ideal solutions. Now what are these? The solution which do not obey the Raoult's law.
over the entire range of concentration. That means we can say that PA is not equal to P naught AXA. अब ये PA जो है that means वेपर प्रेशर जो है पार्शियल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू दिस वन. तो अगर ये इक्वल नहीं है तो या तो ये ग्रेटर देन होगा या फिर ये लेस देन होएगा. सो इन दिस केस हमारे पास क्या होएगा, दो केसेस अराइज होंगे. अदर वन P इज A इज ग्रेटर और सेकेंड वन इट इज लेसर. So next one, whenever we make these two components, अब जब यहाँ पे हम कोई भी दो कंपोनेंट लेंगे A और B, तो बेटे उनका जो डेल वी मिक्सिंग होएगा वो ज़ीरो नहीं होएगा. दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिन चेंजेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. सिमिलरली हीट जो है वहाँ पे इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है. तो इन दो रीजंस के बेस पे ही हमारे पास जो है वो आगे इनकी टाइप्स डिवाइड हो जाएंगी. सो इन दिस केस ए बी इंट्रैक्शंस आर नॉट सेम एज ए एंड बी बी. दैट मीन्स वी हैविंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. क्लियर. और जब इन दोनों को मिक्स करके हम ए बी कंपोनेंट बनाएंगे तो उनकी इंट्रैक्शंस में क्या होएगा, फ़र्क होएगा. या तो इंट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी पहले से या इंट्रैक्शन क्या होंगी, वीक. सो दो केस यहाँ पे अराइज हो जाएंगे. क्लियर. सो दीज टू केसेस आर नंबर वन, सी दिस वन, दिस इज नॉट इक्वल टू. सो हेयर इज डेल मिक्स एच मिक्सिंग इज नॉट ज़ीरो एंड डेल वी मिक्सिंग इज नॉट ज़ीरो. ये ज़ीरो नहीं है, या तो ये लेस देन है या फिर ये ग्रेटर देन है. सो दिस इज अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. Now next is difference between these two. So first difference according to interactions, in ideal solutions having same interactions as AB and AA, and in non-ideal they having the different interactions. Second one, del H mixing is 0 and in this case del H mixing is not 0. In this case del V mixing is 0 and in this case del V mixing is not 0. Now last one is it obeys Rod's law and it does not obey the Rod's law. So these are the some points of differences between ideal and non-ideal solutions. So next one is about the types of non-ideal solutions. So why these types arises? So dear students, as we discussed earlier, in case of non-ideal there is some types जो हमने पहले डिस्कस की कि यहाँ पे पी ए जो होएगा वो या तो लेस देन होएगा या ग्रेटर देन होएगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट उनके टर्म्स के बेसिस के ऊपर वी हैविंग टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नंबर वन विच शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड नंबर टू विच शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द पॉजिटिव डेविएशन. सो इफ द इंटरैक्शन ए बी इंटरैक्शन इज वीकर, क्योंकि बेटा मैंने आपको ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की कि अगर तो हमारे पास इंट्रैक्शन सेम नहीं है तो दो केसेस अराइज होंगे, या तो ए बी वीकर है या ए बी स्ट्रांगर है. सो फर्स्ट केस इज अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन इन विच ए बी इंट्रैक्शंस, दैट मीन्स मिक्स होने के बाद जो सोल्यूशन है उनमें जो इंट्रैक्शंस हैं इफ़ दे आर वीकर देन ए एंड बी बी, दैट मीन्स कोई भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं ये, तो उनकी इंट्रैक्शन अगर वीक है तो वहाँ पे क्या होएगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सोल्यूशन बिकम मोर देन द प्योर लिक्विड्स. तो जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन स्ट्रांग होएगी उतना तो टाइम लगता है मॉलिक्यूल की एस्केपिंग के लिए, लेकिन अगर हमारे पास इंट्रैक्शंस वीक हैं सो दे कैन ईजिली एस्केप. सो ड्यू टू दिस ईच component of solution has a partial vapor pressure greater than expected on the basis of Rod's law. So यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होएगा, ज़्यादा. सो वी कैन से दैट द टोटल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द कॉरिस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर is described as positive deviations from the Rod's law. See this one here, PA is greater than P naught A XA. क्योंकि बेटे हमारे पास दो ही केस होंगे यहाँ पे, या तो PA लेस या PA ग्रेटर. सो अगर हमारे पास ए बी इंट्रैक्शंस जो हैं वो वीक हैं देन दैट केस PA is greater than P naught A XA. Clear? So there is some examples: ethyl alcohol, cyclohexane, acetone, carbon disulfide, benzene, acetone,
carbon tetrachloride, chloroform, these are some examples which showing the positive deviations. और positive deviations को हम कैसे शो करते हैं, दिस लाइन, इसकी जो कर्व्स हैं वो मेन लाइन के ऊपर से जाएंगी, सी दिस वन, और नेगेटिव डेविएशन में क्या आएगा, इसके नीचे से जाएंगी लाइंस इस तरह से, क्योंकि ये जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं दिस इज इन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर, जो हमने वेपर प्रेशर के केस में पहले किया था. सो हेयर इज टोटल प्रेशर, क्लियर. सो यहाँ पे जो कर्व्स होंगी दे आर अबव द लाइन, यहाँ से अबव सरफेस को टच करेंगी, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द explanation. So in case of positive deviation del H is positive because energy is required to break the AA or BB attractive forces, therefore this solution process is endothermic. यहाँ पे del H mixing क्या होएगा बेटे, पॉजिटिव होएगा, because we required energy to break the attractive forces between AA and BB. Why? Because they having strong forces of interaction than AB. So process is endothermic in this case because we need the energy. Second one, because of decrease in magnitude of intermolecular forces of the solution. अब जब solution बन गया, that means AB बन गया, then that time molecules जो होंगे they having less force of interaction. So due to this reason they are loosely bound. So in that case देयर शुड बी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग. क्योंकि बेटे यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं ए बी बी और ए बी, क्लियर, हमारे पास एक सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूशन बन गया. तो जब अगर सोल्यूशन की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, ठीक है. तो उसके रीज़न से यहाँ पे क्या होएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट मीन्स डेल वी इज पॉजिटिव. और अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्लियर. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, इन द पॉजिटिव डेविएशन क्या करेक्टरिस्टिक्स है मेन इसके, नंबर वन, ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी. नंबर सेकंड, del H mixing is positive, del V mixing is positive. Why these are positive? Del H mixing positive क्यों है, because here we need the energy to break the attractive forces among AA and BB. So due to this reason process is endothermic. और बेटे अगर यहाँ पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता तो del H क्या बन जाता, नेगेटिव. सिमिलरली इन दिस केस सोल्यूशन, दैट मीन्स आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूशन जो है वहाँ पे del V क्या बनेगा, पॉजिटिव. वाई इट इज़ पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज लूज, the molecules are loosely bound together. Due to this reason increase in volume takes place and del V mixing is positive. Now next one is about the negative deviation. बेटे जो जो हमने डिस्कस किया पॉजिटिव डेविएशन में बिल्कुल रिवर्स होगा नेगेटिव में. पहले इसका डायग्राम ही देख लो आप, यहाँ से जो कर्व होएगी इट्स बिलो, क्लियर. बाकी सब कुछ सेम है, वही मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में कर्व ड्रॉ होएगी लेकिन बिलो, क्लियर. सो दिस इज अ नेगेटिव डेविएशन. अब हमने नेगेटिव में क्या डिस्कस किया था, पॉजिटिव में, कि ए बी इंट्रैक्शन वीक होएगी, बट यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शन क्या होएगी, स्ट्रांगर. अगर ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रांगर है ड्यू टू दिस रीजन जो पार्शियल वेपर प्रेशर होएगा इट शुड बी लेस देन द प्योर वन, क्लियर. सो इसकी वजह से क्या होएगा, हमारे पास डेल वी मिक्सिंग जो होएगा वो नेगेटिव बन जाएगा. वो नेगेटिव कैसे बनेगा, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे ए बी बनने के बाद वो हो जाएंगी स्ट्रांग. ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक. सो एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है सो डेल एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, इट इज़ टोटली रिवर्स फ्रॉम द पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर. सो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. वी हैविंग नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, सी दिस वन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड, acetic acetone and aniline. There are various examples which shows the negative deviation. So when acetone and chloroform are mixed there are new attractive forces due to the intermolecular hydrogen bonding. जब इन दोनों को बेटा हम मिक्स करेंगे देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होंगी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू दिस रीजन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर and the escaping tendency of the liquid from the solution decreases. In case of solution ये क्या होएगी, decrease. So due to this reason vapor pressure of solution क्या हो जाएगा, less,
क्लियर? सो ये जो हमने स्टेटमेंट दी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। सो यहाँ पे डेल एच क्या हो जाएगा फिर? नेगेटिव, बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एंड डेल वी मिक्सिंग हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन सोल्यूशन द मॉलिक्यूल्स विल बी लूजली हेल्ड मोर टाइटली। तो जो मॉलिक्यूल्स लूज भी होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से वो भी क्या हो जाएंगे? टाइट हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में इंट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, उतना ज़्यादा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सो वी कैन से दैट डेल वी मिक्सिंग इज नेगेटिव. So this is totally reverse from the positive deviation. So here is last one is the difference between them. So first difference is AB forces are less. Here AB forces are more. Here PA is greater than P naught A. Here PA is less than P naught A. Here del H mixing positive, del H mixing negative. Here is endothermic process. Here is exothermic process. Heating increases, here heating decreases, del V positive is, and here is del V negative. So this is all about the negative and the positive deviations. So this is the positive and the negative deviations.